ગઈ તારીખ 22 ઓગસ્ટ 2020ના રોજ એક અરજદાર નામે રાજુભાઈ રવજીભાઈ દેસાઈ રહેવાસી નાના વરાછા સુરત એને વાત કરી કે લસકાણા ગામની મિલકતમાં એના ફ્લેટની એક સ્કીમના બાંધકામ ચાલુ છે, જેમાં ચારેક વ્યક્તિઓ હથિયાર સાથે આવીને કબજા કરી લીધેલ છે ને એના માણસોને ત્યાંથી ભગાડી દીધેલ છે. આ પ્રકારની વસ્તુ અમારા ધ્યાને આવતા તાત્કાલિક પોલીસને ત્યાં મોકલવામાં આવી અને ત્યાંથી 4 આરોપીઓને પોલીસે હથિયાર સાથે પકડ્યા, જેમાં 4 હથિયાર દેશી બનાવટના પિસ્ટલ જેની કુલ કિંમત લગભગ 40,000 રૂપિયા જેટલી થાય અને જીવતા कार्टेज नंग 13. इसके अलावा 2 छरे भी उनके पास थे. तो इस तरह से ये 4 आरोपी वहाँ मिले, जिनका एक का नाम है सलीम भाई इस्लाम भाई ठेबा रहवासी जूनागढ़, बीजा साजिद सुल्तान भाई ठेबा रहवासी जूनागढ़, तीजा हनीफ अल्लाह रखा दरजादा रहवासी जूनागढ़ और चौथो उमरभाई कासमभाई पटनी रहवासी जूनागढ़. आ 4 जणाने पकड़ीने सरथाणा पोलीस स्टेशन में आर्म्स एक्ट मुजबना ए गुना दाखल करवामां आव्या. आना कारणनी तपास करता पहला जे अरजदार हता राजूभाई रवजीभाई देसाई एने वधारानी जे बात करी आ प्रमाणे आ भाईए सने 2015 में शैलेष भट्ट तथा विजय खोखरिया पासेथी रुपया 4 करोड़ 2% व्याजे लीधेला हता, जेनी सामे सिक्योरिटी पेटे अरजदार पासेथी कब्जा वगरनो रजिस्टर साटाकत करावी लीधेल અને ત્યારબાદ અરજદાર પાસેથી 2% બદલે 4.5% હિસાબે આ લોકોએ બળજબરીથી વ્યાજ વસૂલ કરતા હતા અને આ બધા લખાણ શૈલેષ ભટ્ટના ભાણેજ નિકુંજ ભટ્ટના નામે કરાવી લીધેલ હતા. જે રકમ સામે વ્યાજ સહિત રૂપિયા 6 કરોડ ચૂકવી દીધેલ હોવા છતાં शैलेष भट्टे आ हवालो आगळ अनिरुद्ध सिंह उर्फे अनिरुद्ध सिंह રીબડા, महिपत सिंह जाडेजा तथा तेना टोळकीना सभ्योनी मददथी गुनाहित कावतरू रची फरियादी पासेथी वधारे 25 करोड़ रुपया कढावी लेवाना इरादे फरियादीनी मालकीनी जमीन तथा फ्लेटनी साइट उपर फेब्रुआरी 2020 में 4 माणसों बेसाड़ी दीधा था. फरियादीए 20 ऑगस्ट 2020 रोज सबीर नामना ईसमे रिवॉल्वर बतावी जानथी मारवानी धमकी आपी 12 जेटला माणसों साथे कब्जो करी फेंसिंग करवा आवेल होवानुं जणावता सरथाणा पोलीस स्टेशन में IPC कलम 143, 147, 149, 447, 448, 452, 387, 506(2) અને 120(b) ગુનાહિત કાવતરાની કલમ છે અને આર્મ્સ એક્ટની કલમો તથા ગુજરાત નાણાં ધીરધાર અધિનિયમ 2011ની કલમ 38, 39 અને 40 તથા GP એક્ટ 135 મુજબનો ગુનો आरोपीओ जेना नाम आ प्रकारे छे शैलेष बाबूभाई भट्ट रहवासी वेसू सूरत, निकुंज भट्ट, तीजो विजय शांतिलाल खोखरिया रहवासी सीमाड़ा सूरत, चौथो वकील धर्मेश पटेल, 5मो
અનિરુદ્ધસિંહ મહિપતસિંહ જાડેજા રહે રીબડા ગામ અને તાલુકા ગોંડલ જિલ્લા રાજકોટ. છઠ્ઠા અત્તાઉલ્લા ખાન 7મા નંબર સબીર, જેના નામ સરનામાની અત્યારે શોધ ચાલે છે. 8મા સલીમભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ ઠેબા. 9મા સાજિદ સુલતાનભાઈ ઠેબા. 10મો હનીફ અલ્લા રખા દરજાદા. 11મો ઉમરભાઈ કાસમભાઈ પટની, રહેવાસી મોટા સૈયદવાડા, જીવાસા ચકલા, જૂનાગઢ. અને એમના મળતિયાઓ તથા તપાસમાં નીકળે તેઓ તમામ વિરુદ્ધમાં ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. આ ગુનાના વિસ્તાર વધારે હોય, અહીં છે, સૌરાષ્ટ્ર બાજુ છે, અને ગુનાની મહત્વ જોતાં આ તપાસ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને સોંપવામાં આવી છે. થેન્ક યુ. સાહેબ, આરોપી નંબર 5 છે અનિરુદ્ધસિંહ જાડેજા, એ કોણ છે, એનું બેકગ્રાઉન્ડ શું છે, કઈ રીતનો વ્યક્તિ છે? મેં તમને વાત કરી કે આ ગોંડલ તાલુકાના રીબડા ગામના રહેવાસી છે. એના સંપૂર્ણ ગુનાહિત રેકોર્ડ આમાં મેળવી લેશું. જે કોઈ છે તમામ આરોપીઓના સંપૂર્ણ બેકગ્રાઉન્ડ બાબતે તપાસ થશે અને તાત્કાલિક પુરાવા ભેગા કરીને તપાસ આગળ વધારવામાં આવશે. રાજુ દેસાઈ છે, એની સામે પણ બિટકોઇનમાં સંડોવાયેલો છે સાહેબ. આ બેકગ્રાઉન્ડ પણ અમે તપાસી લઈશું. આ બેકગ્રાઉન્ડ ચકાસણી કરી લઈશું. અને જે જૂનાગઢની ગેંગ છે એ પણ એના રીઢા ગુનેગારો છે, એમની સામે કઈ વધારે? અત્યાર સુધી કેમ કે 10 ગુના દાખલ કરવામાં આવ્યા છે, એના ગુનાહિત રેકોર્ડની વિગતો હું અત્યારે આપને આપી નહીં શકું. આ બધા બાબતોની ચકાસણી કરવામાં આવશે. અનિરુદ્ધસિંહ છે તે આ આખું પ્રકરણ બન્યું છે, એમાં કંઈ બીટ કનેક્શનનું કનેક્શન આવે છે? કારણ કે શૈલેષ ભટ્ટ બિટકોઇનનો આરોપી છે, રાજુ દેસાઈ ભૂતકાળમાં આરોપી હતો, એ કંઈ લેવડ દેવડ છે કે કઈ લેવડ? અત્યાર સુધી જે ફરિયાદ અમારી સામે આવી છે, જે વિગતો ધ્યાને આવી છે, આમાં કોઈ અત્યાર સુધી બિટકોઇનની કોઈ બાબતના સમાવેશ નથી. અરજદારના જણાવ્યા પ્રમાણે એની કન્સ્ટ્રક્શન સાઇટ ઉપર ચાલુ હતી, એને રોકડની જરૂર હતી, એટલા માટે એને પૈસા ઉધારે લીધા હતા. સર, જે 4 કરોડ છે બિટકોઇન તરીકે આપવામાં આવ્યા હતા કે કેશ? સર, ફેબ્રુઆરીમાં અત્યારે જે વિગતો હું આપની સાથે શેર કરું છું આ ફરિયાદના આધારે છે. બાકી વધારે ડિટેલ અને તમામ હકીકતો તપાસ પછી બહાર આવશે. સર, ફેબ્રુઆરીમાં જ્યારે 4 માણસ બેસેલા હતા ત્યારે પોલીસનો સંપર્ક નહીં કરેલો? અમારા અગાઉ કોઈ સંપર્ક કર્યા હોવાનું બાબત અમારા ધ્યાને નથી. સંદીપસિંહ ગોહિલ કરી છે સાહેબ, એ પણ છે આમાં? જે નામો અત્યાર સુધી અમારા ધ્યાનમાં છે અમે આપને કીધા. આના સિવાય મેં અગાઉ પણ વાત કરી કે એમની સાથે બીજા કોઈ સંડોવાયેલ હશે તો એની પણ તપાસ થશે. थैंक यू. हिंदी में छोड़ा दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, पूरी चीज़ ये शॉर्ट कर दीजिए ना, किस तरह की गैंग है, क्या क्यों पकड़ी थी, क्या करने आए थे, कहाँ के लोग हैं, शॉर्ट में આની ઝેરોક્ષ છે? दे देंगे, प्रेस नोट देंगे, आप प्रेस नोट दे देंगे. दूसरा सर वो टीसीबी का कारखाना अभी हिंदी वाला कर लेते हैं. 22 अगस्त के रोज़ एक नागरिक पुलिस के पास आए और उन्होंने बताया कि उनकी कंस्ट्रक्शन साइट जो पलसाना एरिया में लसकाना गांव की सीम में सिद्धि विनायक ग्रीन नाम की बिल्डिंग से चल रही है. वहाँ कुछ लोग हथियार के साथ आए हैं और उन्होंने उस स्कीम का कब्ज़ा ले लिया है. पुलिस ने वहाँ जाके जब तलाश की तो वहाँ असल में 4 व्यक्ति मिले. उनके पास से 4 देशी बनावट के हथियार और 2 छुरे मिले. उन सभी को पकड़ा गया और आर्म्स एक्ट के तहत
सरथाना पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर कराया गया। लेकिन इस केस में जिस आदमी ने पुलिस को इन हथियारधारी व्यक्तियों के बारे में सूचना दी थी, उसकी विशेष पूछपरछ आगे जब की गई तो उन्होंने बताया कि इन सब का आने का कारण ये था कि इसने 2015 के साल में शैलेश भट्ट तथा विजय खोखरिया के पास से 4 करोड़ रुपए, जिसकी इसको कंस्ट्रक्शन के काम के लिए आवश्यकता थी, 1.5% के ब्याज से इसने लिए थे, जिसके बदले में उन्होंने साटाकत फोर्सिबली बलजबरी से शैलेश भट्ट के भाणेज है निकुंज भट्ट के नाम से लिखवा लिया था। उसके सामने जो कंप्लेनेंट है उसने बताया कि ये 6 करोड़ रुपया अभी तक पे बैक कर चुका है, चुका चुका है, लेकिन अभी भी शैलेश भट्ट ने अनिरुद्ध सिंह, जो रिबड़ा गोंडल तालुका का रहने वाला है, उसकी टोळकी के सभ्यों के सहायता से इसकी साइट पे कब्ज़ा करने का षड्यंत्र किया और वहाँ आदमी भेज के फरवरी 2020 से 4 आदमियों को बैठा दिया। अभी जैसा मैंने बताया 20 तारीख को जो 4 आदमी इसके फ्लैट की स्कीम में घुसे और वहाँ कब्ज़ा किया, उनको पकड़ लिया गया है। उनके विरुद्ध में आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत केस रजिस्टर किया गया है सरथाना पुलिस स्टेशन में। और उसके बाद जो विगतें मैंने आपको कहीं, उसके बाद आईपीसी सेक्शन 143, 147, 149, 447, 448, 452, 387, 506(2) और आईपीसी 120(b) के तहत, उसके साथ साथ आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत और गुजरात मनी लेंडर्स एक्ट के तहत ऑफेंस रजिस्टर किया गया। इसमें जिनके नाम आरोपियों के तौर पे सामने आए हैं वो हैं शैलेश बाबू भाई भट्ट, रेसिडेंट ऑफ वेसू सूरत, दूसरा निकुंज भट्ट, तीसरा विजय शांतिलाल खोखरिया जो व्रज सेक्टर 1 सिमाड़ा सूरत का रहने वाला है, चौथा वकील धर्मेश पटेल, पांचवा अनिरुद्ध सिंह महिपत सिंह जाडेजा रहवासी रिबड़ा तालुका गोंडल राजकोट, छठा अताउल्ला खान, सातवां शब्बीर जिसका कंप्लीट एड्रेस अभी तक नहीं है, आठवां सलीम इब्राहिम भाई ठेबा, ये जूनागढ़ का है। जूनागढ़ के ही और 3 आदमी हैं, साजिद सुल्तान भाई, हनीफ अल्लाह रखा दरजादा और उमर भाई कसम भाई पटनी। इनके अलावा इनके ग्रुप के बाकी और लोग जिन्होंने ये अपराध अंजाम देने में इनकी मदद की, वो जो इन्वेस्टिगेशन में नाम सामने आएंगे, इन सभी के विरुद्ध में ऑफेंस सरथाना पुलिस स्टेशन में रजिस्टर किया गया है। क्योंकि अपराध का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, महत्वपूर्ण अपराध है, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। सर, क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो आरोपी गिरफ्तार हुए, इनका कोई अब तक सामने आया? इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में अभी तलाश चल रही है, जो भी सामने आएगा उसको ध्यान में रखा जाएगा। सर, क्योंकि आरोपी बिटकॉइन वाले केस में भी इन्वॉल्व रह चुके हैं, तो इस पूरे मामले को उस नज़रिए से भी तफ्तीश की जाएगी कि इसमें बिटकॉइन या इस तरह का। मैंने आपको बताया कि जिन धाराओं के तहत अलग अलग एक्ट्स में ये गुनाह रजिस्टर किया गया है, उसके अलावा भी यदि और भी कोई चीज़ हमारे ध्यान पे आएगी, इन्वेस्टिगेशन में जो भी चीज़ फलित होगी, उसके आधार पर आगे भी एक्शन लिया जाएगा। थैंक यू। साहब, आरोपी ने मुद्दा माल आरोपी जो पकड़े गए हाँ हैं जी सर। उनको भी लेके आ रहे हैं, मुद्दा माल और आरोपी, उसके फोटोग्राफ्स, उसके विजुअल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ख़ास चीज़
यही है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। सूरत में इस तरह से कोई भी आदमी कायदा हाथ में लेगा और क्रिमिनल तरीक़ों से क्रिमिनल्स का यूज़ करके यदि किसी भी नागरिक को डराएगा, धमकाएगा, यदि किसी की प्रॉपर्टी कब्ज़े करेगा तो उसके विरुद्ध में एज़ पर लॉ कायदा के मुताबिक कड़क से कड़क कार्रवाई हम लोग करेंगे। थैंक यू। इस रजिस्ट्रेशन सेक्टर 1 श्री प्रवीण मल के विस्तार में रहा, ये भी एसोसिएटेड रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन सौंपा गया क्राइम ब्रांच को। एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच श्री शरद सिंघल हैं। पूरे संकलन के साथ एक स्ट्रॉन्ग टीम बना के हम इसमें इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।